শুভ সন্ধ্যা দর্শক বন্ধুরা। প্রতিদিনের মতো প্রতিদিন তো অন্য একজনকে দেখে থাকেন, কিন্তু আজকে আমি সুমন আপনাদের সামনে চলে এসেছি আমার আঙিনায় অনুষ্ঠান নিয়ে। আর আমার আঙিনায় অনুষ্ঠান মানেই আমাদের সাথে থাকে একজন নৃত্যশিল্পী, না হয় একজন সঙ্গীত শিল্পী, না হয় একজন বাচিক শিল্পী, অথবা কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট বাদক। তো আজকে সেরকমই আমাদের সাথে আছেন সুদূর মুম্বাই থেকে একজন নৃত্যশিল্পী। আমি পরিচয় করাবো তার সাথে, কিন্তু তার আগে দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলি যে আপনারা যারা এখনো জয়েন করেননি তারা তাড়াতাড়ি করে আমাদের পেজে জয়েন করে যান। আর আজকে আমাদের যিনি শিল্পী আছে তিনি খুবই খুবই স্পেশাল আমার কাছে। কেন, তার সাথে আমি প্রচুর প্রচুর বিদেশে অনুষ্ঠান করেছি, তো তার সাথে আলাপ করিয়ে দেবো আপনাদের সবার সাথে। সুদূর মুম্বাই থেকে अनिल कुमार सिंह। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते नमस्ते। We Good welcome you evening. to our program Amar Anginay. This is a Bengali name. Thank you. So we all welcome you. তো আজকে আমি দর্শক বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলছি, আমি কিন্তু বাংলা, হিন্দি, ইংলিশ মিশিয়েই বলবো আপনাদের সবার জন্য, যাতে আমাদের অনিলের অনেক বিদেশি বন্ধুরা আছেন যারা হিন্দি এবং ইংলিশ বুঝতে তাদের সুবিধা হয়। তো আপনাদের যেটা বুঝতে অসুবিধা হবে আপনারা অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর চলে যাব অনিলের কাছে। সো অনিল, कैसे हैं आप? जी, thank you so much, Suman ji. I'm fine and namaste, namaskar, assalamu alaikum and good evening to the wonderful audience, and I request all of you to please stay connected with us. तो आपको जैसे पता है कि हमारे बहुत बंगाली ऑडियंस होता है बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में, तो उनके लिए आप बांग्ला में कुछ कहना चाहेंगे? बांग्ला में कुछ कहना है मुझे? नमस्कार. Okay, okay, ठीक है. I can't speak much, but then I mean, Suman ji, I really want to share this with you that Bangla has been one of my favorite language, and it has always been an influence on my, personality. So yes, it is there with me always. Yes, you are also Thank you. a Ravindrik dancer. So to know the Yes. Ravindrik form, you have to learn Bengali, isn't it? Yes, actually, that's the what do you call it? The contest. I mean, the practical part of it. I mean, this is how people presume. But with due respect to all, but then my guru, Dr. Tushar Guha, when he started imparting, when he started giving me training, so he always used to tell me that Anil, कोई भी song, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो कोई और language हो, and if you would like to express it, if you would like to emote it, just go with the bhav, understand the lyrics. Of course, understanding the lyrics is required, but then more than that, it's the subtext meaning. उस गाने के पीछे का मतलब क्या है उसे समझ लीजिए, ऑटोमेटिकली आप जो प्रेजेंट करेंगे वो अप्रॉप्ट विद द वर्ड कॉन्टेस्ट प्रेजेंट होगा. सो यस, लैंग्वेज जानना जरूरी है, बट जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे बहुत ज्यादा बांग्ला पता नहीं है. सो आई जस्ट गो विद द भाव एंड वॉट एवर इंटरप्रिटेशन हैज मुझे बताया जाता है, आई जस्ट गो विद द फ्लो. जी हाँ, और जैसे आप जो डांसर्स फ्रेंड्स हैं उन लोग को शायद पता है कि हम डांसर्स के लिए राग, भाव और ताल ये सबसे ऊपर है. मतलब लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन अगर ये तीन चीज हम सब समझ पाते हैं. तो अनिल जी, आप ये बताइए कि आपको ये डांस के मतलब इस दुनिया में आपका कैसे आना हुआ? डांस की फील्ड में? ओह, दैट्स अ लवली क्वेश्चन. गुड क्वेश्चन सुमन जी, थैंक यू. एक्चुअली डांस, आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू डांस फ्रॉम द एज ऑफ 5. उस समय हमारे घर पे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, और उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर एक 45 मिनट का एक प्रोग्राम आता था, क्लासिकल परफॉर्मेंस प्रोग्राम, जिसमें कि सारे एमिनेंट आर्टिस्ट, ऑल आर्ट फेस, आर्ट स्टॉलवर्ड यूज्ड टू परफॉर्म. सो मैं वो हमेशा बहुत बहुत ही एंथुसियास्टिक, बहुत इंटरेस्ट लेकर के मैं वो देखा करता था.
like my family used to say कि क्या मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है, because I'm absolutely not from an artistic background. टोटली मैं बिजनेस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की फैमिली से हूँ. तो जब मैं ये सब ऐसे मतलब ऐसे एपिसोड्स में ऐसे टीवी शोज में इंटरेस्ट लेता था, तो फैमिली यूज्ड टू जस्ट पॉन्डर लेकिन बच्चा करने क्या वाला है. बट देन यस, वहां से मैंने क्लासिकल परफॉर्मेंस देखना शुरू किया. और चूंकि बच्चा था तो बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, बट देन उनके कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, उनका द घुंघरू, द कोऑर्डिनेशन, जो साइड में इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे उसके साथ जो कोऑर्डिनेशन होता था घुंघरुओं का, या जो उनके जेस्चर, पोस्चर, उनके एक्सप्रेशन, ओह माय गॉड, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्रेस. तो ये सारा मुझे इतना मतलब इतना मेरे अंदर इंटरेस्ट एग्रीवेट करता था कि there was always, at the next level, it was like, I want to know more. So from there, one of my friend, and with God grace, one of my friend, Purnima Gupta, she took me to a world acclaimed Institute of Performing Arts, Nrityanjali Institute, which is based in Mumbai. So she took me there, and then, from there the journey started. I joined classical Bharatanatyam class, and there I learned a complete Margam. I started learning Bharatanatyam properly, with a proper, format Margam. So classical journey started there. From there, after 2-3 years, I think Dr. Tushar Guha sir, who's again one of the prime guru, whose impact is there with me and will always be there. So he spotted me in I think some show of Nrityanjali, some performing show of Nrityanjali. From there he picked me to give me training for Indian folk dances, Ravindrik Nritya. So from there the journey, if I put it in a smaller sentence, from there the journey started, and then rest is the history. I just started learning performing, and this is where I reached. Okay. तो बहुत अच्छा. हम सुन चुके कि अनिल जी का कैसे डांस के फील्ड में आए. तो पहले आप आपका एक डांस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? तो फिर उसके बाद बात करेंगे डांस के बारे में. बिल्कुल. तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं डांस का. अनिल जी का पहला परफॉर्मेंस. देंगे हम एक दूसरे का साथ और होकर रहेंगे हम आजाद. माना थोड़ी मुश्किल की ये घड़ी है, पर जिंदगी तू भी तो जिद्दी बड़ी है. कुछ दिन बनानी होगी एक दूसरे से दूरी. सच कहते थे बुजुर्ग हमारे कि ये दूरियां भी है जरूरी. अब तो यही है मेरे दिल के जज्बात. देंगे हम एक दूसरे का साथ और होकर रहेंगे हम आजाद. তো আমরা অনিল কুমার সিং এর ফার্স্ট পারফরম্যান্সটা দেখে নিলাম. तो এবারে আমি সরাসরি চলে আসবো अनिल जी কাছে. अनिल जी, ये परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताइए. क्या कौन सा परफॉर्मेंस जी? एक्चुअली नहीं, बिल्कुल. एक्चुअली ये जो परफॉर्मेंस है, इट्स एक्चुअली was not planned. ये बिकॉज ऑफ हम सभी जानते हैं कि वी आर अंडर दी वेदर ऑफ COVID-19 and it's a pandemic situation from which all over the world is really scared. So इस परिस्थिति में जब हम घर पर है, घर में बंद है, आर्टिस्ट का जो पूरा स्किल, आर्टिस्टिक विजन जो है, वो सब कुछ धीरे धीरे डायलेट हो रहा है. आर्टिस्ट आर नॉट मोटिवेटेड. उस परिस्थिति में वन ऑफ माई फ्रेंड, वी वर जस्ट टॉकिंग लाइक वी शुड डू समथिंग, एंड somehow I came across to this music, and this music is composed by
one of the multi-dimension personality, Inni Singh ji. He's a world-renowned tabla player. He's a fantastic photographer. He's a singer himself. He's a poet. Oh my God! If I just start telling about his skills, so there will be a huge list. So this is the composition of Inni Singh ji with his team, and he created this for some venture. I mean, for some showcase of artists with some, production. So when I heard this music, I really found it so motivating, so apt to the, situation which is on all over the world. So the interest came into me that I should do something, and somehow I was thinking about it, and then simultaneously one of my very dear friend and a senior art face, Anjali Mishra ji, we were just talking one day, and then she said, Anil, this is really a nice music, can we do something? So we were planning, but somehow because of the, you can understand the technical problems and copyright issue and all, so we couldn't do it. But then चूंकि ये मेरे अंदर आ गया था कि मुझे अब इस म्यूजिक पे कुछ करना है, so मैंने इन्नी सिंह जी को फोन किया, उनसे मैंने बात किया और उनसे मैंने परमिशन लेके, इन्नी सिंह जी प्लीज मुझे ये म्यूजिक दीजिए, मुझे इसके ऊपर कुछ प्रेजेंट करना है, जस्ट टू डू समथिंग, बिकॉज इट्स रियली अ मोटिवेटिंग, व्हाट दे कॉल इट, सप्लीमेंट टू द आर्टिस्ट. So he instantly told me, yes, Anil, of course, why not? So I just, recorded it. I sent it to few of my, the other venture agencies. And yeah, that's the history about it. So basically, इसमें जो पूरा कहा गया है कि देंगे, अगर आप उसको सुने ध्यान से, तो it's all about the, what do you call it, putting up boosting the morale, the motivational, factor in artists and in art arena. Okay. তো আমরা শুনে নিলাম অনিলজির ফার্স্ট পারফরমেন্সটার ব্যাপারে। তো এবারে আমি चले আসবো अनिल जी, ये आपने कितना क्लासिकल डांस फॉर्म सीखा है और आप रविंद्र नृत्य भी सीखे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर, नहीं एक्चुअली मैंने क्लासिकल डांस तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अर्ली एज से शुरू कर दिया था, व्हेन आई वाज आई थिंक 6-7 years, छोटा था मतलब, तो आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम लेट श्री जतिंदर पाल बंसल. ही इज आल्सो नोन नेम, ही इज द ओनली one person from the Sikh community to learn classical dance Bharatanatyam. So I was fortunate enough to learn from him. So I learned this classical dance Bharatanatyam from him, and then of course, as I said that Dr. Guha, I was fortunate again to get the training from Dr. Tushar Guha ji, who is a multi-dimensional personality. I mean, all qualities in one person. So he gave me training in Indian folk dances and Ravindrik dance and acting, and of course he gave me few what do you call it, he taught me some nuances of other classical dance forms also, like Kathak and Manipuri. So these are the forms I have not properly learned. Whether it's Kathak, Manipuri, I have not learned it properly. I have learned properly, if you ask me, classical dance Bharatanatyam with complete Madam, and then extended training I learned from my guru's guru, that is my Dadi Guru. Unfortunately, she just expired, I think 2-3 days before, late Srimati Raji Narayan ji. So I learned from her. So yeah, so I learned classical Bharatanatyam, Indian folk dances, and Ravindrik from Shri Dr. Tushar Guha ji, Nrityanjali. So बहुत सारे ऑडियंस ने हम लोगों के साथ ज्वाइन किया है और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, तो उनके लिए मैं एक बार कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ। कौशिक पोद्दार जी लिखते हैं, नाइस टू सी यू अनिल। तो आपने कमेंट्स किया है, इट इज आल्सो नाइस फॉर अस। और सोशल मार्केटिंग से एक एसएमएस आया है, सो गुड। और अंजलि मिश्रा जी श्रीलंका से वो लिखते हैं, सुमन जी एंड अनिल जी नमस्ते। आपको भी बहुत बहुत नमस्ते अंजलि जी, आप भी ऐसे हमारे साथ देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और एक बढ़ावा लगता है कि आप हमारे साथ हैं। और सोशल मार्केटिंग से भी नाइस कमेंट्स आया है।
संगीता सिंह जी लिखते हैं गुड, और एमडी मनोहर बांग्लादेश से वो लिखते हैं अनिल दा नमस्ते। तो इन सब के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ यस सुमन जी, आपने मुझसे कहा था ना कि आप बांग्ला में कुछ बोलिए, हाँ सो आई विल से संगे थाकुन। सो आई होप विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई होप इसका मतलब यही है कि आप साथ में रहिए। तो और आप सभी व्यूअर्स थैंक यू जी। और माने इस परिस्थिति में, ऐसे माहौल में ये शॉर्ट कमेंट संगे थाको मतलब it means a lot to everyone because Yes. in this situation Yes. we need to be with everyone. আমরা United, সবাই we এই need to be পরিস্থিতিতে আমাদের সবাই সবার together. সঙ্গে থাকা উচিত, কেন সবাই মিলেই আমরা কিন্তু এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনটাকে ওভারকাম করতে পারবো। Oh. So, thank you so much, viewers. Please be with us, and yeah, it's pleasure to see all eminence here watching this live show. Thank you. सो अनिल जी आपका नेक्स्ट परफॉर्मेंस देख लें, सेकंड परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल। ओके, तो बिल्कुल, আমরা बिल्कुल। অনিল জির এবার পরের পারফরম্যান্সটা দেখে নিই। চিত্ত পিপাসিত রে গীত সুধার তরে চিত্ত পিপাসিত রে গীত সুধার তরে চিত্ত পিপাসিত রে তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচ্ছে যথা তাপিত শুষ্কলতা বর্ষণ যাচ্ছে যথা কাতর অন্তর লুণ্ঠিত ধূলি পরে গীত সুধার তরে চিত্ত পিপাসিত রে আজি বসন্ত নিশা আজি অনন্ত তৃষা আজি বসন্ত নিশা আজি অনন্ত তৃষা আজি জাগ্রত প্রাণ তৃষিত চকর সমান গীত সুধার তরে চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত হবে চন্দ্র অতন্দ্র নভে জাগিছে সুপ্ত হবে
দেখে নিলাম আমরা অসাধারণ একটা নাচ। আমি আসবো অনিলজির কাছে। तो अनिल जी ये डांस के बारे में कुछ बताइए। जी जी एक्चुअली ये पर्टिकुलर जो परफॉर्मेंस है इट्स वेरी नियर टू मी बिकॉज इसको सबसे पहले तो ये प्रेजेंट किया था शाहाना डांस एंड म्यूजिक कंपनी इनटू राविंद्रिक संगीत एंड नृत्य श्री अनुश्री बैनर्जी जी. So she choreographed this dance and she chose me for this particular performance and because this is 1 year before, so I don't remember much, but then I think this was the theme of this performance was about it's called Robi Rage. I don't know the Bangla, I mean the audience will be able to understand it better. This is about this, basically she wanted to represent the various raga, the classical ragas with the various time span in a day, like morning, afternoon, evening, early morning, late night. So one raga was depicting a particular segment of a day. So I think this which I did was at the middle night or early morning. I'm sorry, with due respect, I don't remember. Honestly, I'm sorry. So yeah. So this when I was learning this dance, again as you said before that अनिल जी बांग्ला सीखना जरूरी होता है, तो मैं सही बताऊं सुमन जी and the audience that I never knew a single word of it. I didn't understand the meaning. बट देन जिस हिसाब से मुझे अनुश्री बैनर्जी दीदी ने जिस तरीके से सिखाया, उन्होंने जिस तरीके उसका सब टेक्स्ट, उसका इन बिटवीन लाइंस का जो मतलब है, जो एक्सप्रेशन चाहिए था, वो उन्होंने मुझे समझाया कि देखो अनिल, आपको इस फ्लो में जाना है, ये प्रकृति है. शी जस्ट गेव मी एट्रीब्यूट एग्जांपल्स एंड उस हिसाब से शी गेव मी जेस्चर्स एंड दिस इज व्हाट आई प्रेजेंटेड. दिस वाज at the 44th anniversary celebration of Sahana Ravindrik Music and Dance Company. तो ये रविंद्र नृत्य जो इसका फॉर्म है, तो ये आपने क्लासिकल ट्रेनिंग लिया हुआ है भरतनाट्यम और कथक का, तो इसके वजह से आपको ये सीखने में आसानी हुआ आपको? नहीं हाँ नहीं बिल्कुल. देखिए क्या होता है सुमन जी, I mean, हर एक आर्टिस्ट अपना एग्जाम्पल सबसे बेहतर दे सकता है. तो मैं अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि मैंने जब भरतनाट्यम सीखा था, तो भरतनाट्यम और कथक जो मुझे सर ने सिखाया था, थोड़ा बहुत जो भी मैंने कथक के बारे में नॉलेज, जो भी थोड़ा बहुत मैं समझ पाया, सीख पाया, डॉक्टर तुषार गुहा सर ने मुझे लाइक इंडियन फोक डांसेस, मणिपुरी स्टाइल का जो एसेंस है वो सिखाया. राविंद्रिक नृत्य का एक्चुअल एसेंस क्या होता है वो उन्होंने मुझे सिखाया. तो जो एलिमेंट्स, जो कॉमन एलिमेंट्स जो हम अगर देखने जाए क्लासिकल डांसेस के, तो इट्स ऑल अबाउट दी अस्थायी भाव. जो भाव जो है, अल्टीमेट जो भाव है, सबका एक ही है. जेस्चर, मोमेंट्स, पॉस्चर वो थोड़े से डिफरेंट है, तो वो तो सीखना पड़ता है, वो जानना पड़ता है. लाइक एज द डांस फ्रेटर्निटी, डांस व्यूअर नो दैट भरतनाट्यम हैज all those proper formative cut based steps, adavus. In if I talk about Ravindrik Nritya, so वहां पे it's more of Manipuri impact. I mean more of Manipuri impact. So वो मेरे लिए थोड़ा सा easy इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो संस्था है नृत्यांजन इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामेटिक्स एंड कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, तो ये जो संस्था है वहां पे जब हमें डांस सिखाया जाता है, तो कोई एक पर्टिकुलर क्लासिकल डांस के प्रिंसिपल्स पे नहीं सिखाया जाता है. हमें जो इनिशियल ट्रेनिंग जो दी जाती है वो बहुत ही इसेंशियल, जो हर क्लासिकल डांस फॉर्म्स में जरूरी है आर्टिस्ट को सीखना, तो ऐसे हमें सिखाया गया. इसलिए आई थिंक अगेन मैं कहूँगा कि आई वॉज फॉर्चुनेट, आई वॉज ब्लेस्ड दैट इतने अच्छे गुरु मुझे मिले कि उन्होंने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी कि मैं भरतनाट्यम आर्टिस्ट होते हुए मणिपुरी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हुए राविंद्रिक नृत्य सीख कर मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर पाया. सो यस, इट इज टू एन एक्सटेंट एप्ट
of learning classical dance to do a Ravindric Nritya, which is also a extended classical dance. আমি চলে আসি একটু কমেন্টসে। সঞ্চিতা দত্ত, উনি বাংলাদেশ থেকে দেখছেন। উনি একজন কত্থক নৃত্য গুরু। উনি লিখেছেন সাথে আছি ब्यूटीफुल। तो दीदी you. आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, हमारे साथ रहिए। और अनिल जी कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? Ji, thank you so much. I mean, it's a pleasure to have, as I said before, that the art stalwarts, art faith, those who are there in this live streaming, please stay with us, motivate us, and it's a pleasure to see you all, commenting on this streaming. Thank you. তো অনিল জি, এই যে রবীন্দ্র নৃত্য নিয়ে কাজ করছেন আমরা দেখছি, আমরা তো দেখে থাকি যে ভারতনাট্যম আমরা শিখছি একটা বিভিন্ন প্রদেশের নাচ, কত্থক আমরা শিখছি বিভিন্ন প্রদেশের নাচ, কিন্তু অন্য কেউ যখন আমাদের এই রবীন্দ্র নৃত্যটাকে নিয়ে কাজ করছেন, শিখছেন, অন্য ভাষী একজন মানুষ, তখন নিশ্চয়ই আমাদেরও গর্বে বুকটা ভরে যায়। तो अनिल जी, हम देखते हैं कि रविंद्र नृत्य को लेकर मतलब कोई नॉन बंगाली जिसको बांग्ला समझ में नहीं आता, वो बहुत कम काम होता है, लेकिन मैक्सिमम बंगालीज आर देयर। सो आपने एक मतलब नॉन बंगाली होके फिर रविंद्र नृत्य को अपनाया, उसको काम किया उसके ऊपर, तो ये लगाव कैसा कैसा ये हुआ? नहीं, again a very good question, Suman ji, thank you so much for asking this. See, सुमन जी, मुझे ऐसे लगता है कि आर्ट का ना कोई जेंडर नहीं है, आर्ट का कोई कास्ट नहीं है, क्रीड नहीं है, आर्ट का कोई रिलीजन नहीं है। आई थिंक आपके ही लाइव स्ट्रीमिंग में मैंने एक बहुत ही बड़े विख्यात आर्ट स्टॉलवर्ट की बात सुनी थी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी बैड इन रिमेम्बरिंग नेम्स। सो उन्होंने एक बात कही थी कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कैरेक्टर प्रेजेंट करना है तो जरूरी नहीं है कि एक मेल पुरुष, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। अगर मान लो चित्रांगदा में हो सकता है कि अर्जुन के रोल के लिए एक कोई गर्ल बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही प्रेजेंटेबल तरीके से उसको, बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकती है। एंड साइमल्टेनियसली मे बी शुरूपा, इफ आई से अबाउट वन कैरेक्टर ऑफ चित्रांगदा, वो कोई एक मेल पर्सन भी कर सकता है। सो उसी कॉन्टेक्स्ट के बेस पे मैं कहना चाहूंगा कि डांस का कोई आई मीन आर्ट का बेसिकली कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। आर्ट इज फॉर एवरीबडी एंड उसको हमें एक लिंग्विस्टिक बैरियर्स में नहीं रखना चाहिए। ये है कि रविंद्र में अगर मैं कहूँ कि रविंद्र संगीत नृत्य में कलकत्ता बांग्लादेश के काफी लोग हैं, बट देन मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि नॉन बंगालीज जो है वो प्लीज इसमें आइए, सीखिए। इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स रियली वेरी इनरीचिंग, इट इनरीच योर आई मीन योर। अगेन मैं कहूँगा कि हम अपना एग्जाम्पल सबसे बेटर दे सकते हैं। तो रविंद्रिक नृत्य मोर देन भरतनाट्यम एंड अदर डांस फॉर्म्स या फिर इंडियन फोक डांसेस जो मैंने सीखा, उससे कई गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल मेरे लाइफ में कह लो, या फिर मेरे आर्ट में कह लो, मेरे डांस में कह लो, मेरे एक्सप्रेशन में कह लो, रविंद्रिक सॉन्ग्स एंड नृत्य का रहा है। सो टू योर क्वेश्चन दैट art doesn't have a gender, nor does it have a caste, religion. It's for everybody and anybody. It's just that we need to decide what we want to learn and what we want to do. And yes. তো আমাদের তো শুনতে খুব ভালো লাগছে যে রবীন্দ্র নৃত্য নিয়ে কোনো শিল্পী এত কিছু বলছেন, এবং সে একজন হিন্দি ভাষী, তিনি বাংলা ভালো করে বলতেই পারেন না। তো আমার মনে হয় এটাই আমাদের রবীন্দ্র নৃত্যের সার্থকতা। পুরো বিশ্বব্যাপী মানুষ তাকে গ্রহণ করেছে, আর তাই হয়তো তিনি বিশ্বকবি। तो कौशिक पोद्दार एक बहुत अच्छा कमेंट किया है। उन्होंने लिखा है, रोल ऑफ आर्ट फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट ह्यूमन मोशंस, व्हाट इज योर थॉट्स? रोल ऑफ आर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इमोशंस। Well, oh my God, thank you, Kaushik ji. This is What such is a your nice question. thoughts? Yes. Role of art. I think art is. अच्छा, अगेन मैं रेफरेंस देना चाहूंगा मेरे गुरु डॉक्टर तुषार गुहा जी का।
जिन्होंने एक बुक भी लिखा हुआ है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आर्ट जो है हमारे डे टू डे लाइफ में है, आर्ट व्यक्ति के विकास में एक बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। लाइक हमारा जो चलना है, हमारा बोलना, हमारा ऑल राउंड, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल, अगर डे टू डे लाइफ में जब हम कहीं वॉक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैं एक डायरेक्टर हूं एक कंपनी का और मैं कहीं मीट के लिए जा रहा हूं, तो जब मैं वहां पे पहुंचूंगा तो वो मेरी मेरी पर्सनैलिटी ऑरा जो है, मेरा जो रेजोनेंस है, उससे सामने वालों को महसूस होना चाहिए कि यस ही इज समबडी हु इज डायरेक्टर ऑफ सो एंड सो। तो अल्टीमेटली इट्स योर पर्सनल ऑरा। पहले तो लोग आपको देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। सो वो जो ऑरा है वो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ आर्ट। आर्ट हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है, हमारे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है, हमारे इमोशंस को और नर्चर करता है। और मुझे शायद इसलिए मैं कहूंगा, आई डोंट नो, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग ऑडियंस व्यूअर्स, दैट आर्टिस्ट थोड़े से आम लोगों से थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। एक्सप्रेस करे ना करे वो अपनी अपनी जगह है, बट देन आर्टिस्ट नॉर्मल पब्लिक से थोड़ा सा ज्यादा सेंटिमेंटल होते हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर्ट। बिकॉज आर्ट हमारे पहलू, हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को इतना अच्छे से विकसित करता है कि हमें पता होता है कि हमें कब स्विच ऑन करना है, कब स्विच ऑफ करना है। सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। I mean, art is really very important in every human being, personal life. হ্যাঁ, অবশ্যই। আর আমি কৌশিক পোদ্দার বাবুকে আমি অনুরোধ করব যে বলবো যে আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে সকল তার নাচ গান যিনি যা রচনা করে গেছেন, হিউম্যান ইমোশনস, সুখ দুঃখ, হাসি কান্না, জন্ম মৃত্যু, সমস্ত বিষয়ে কেন সেটাকে আমরা অনুভব করি, তাই না? তো আমার মনে হয় যে তার থেকে বড় উদাহরণ আর কিছু হতে পারে না। তো রোল অফ আর্ট ইন ডেভেলপমেন্ট অফ হিউম্যান ইমোশনস, এটাই সব থেকে বড় প্রমাণ। তো আমরা পরবর্তী আমরা আপনার পারফরমেন্সে চলে যাই। নেক্সট পারফরমেন্স উই আর গোইং টু সি। ওকে, শিওর, থ্যাংক ইউ। ऐसे देखने में मजा नहीं आ रहा डांस, इसमें बराबर मजा नहीं आ रहा मेरे शिव शंभो स्वयं शंभो शिव शंभो स्वयं शंभो शिव शंभो स्वयं शंभो शिव शंभो स्वयं शंभो शिव शंभो स्वयं
तो हम लोग ने एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखा अनिल जी का। भरतनाट्यम है ना ये, भरतनाट्यम परफॉर्मेंस। जी 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 जी। तो अनिल जी इसके बारे में कुछ बताइए, कहाँ पे हुआ था ये परफॉर्मेंस? श्योर, एक्चुअली ये परफॉर्मेंस जब मैं नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट में था अंडर दी एबल गाइडेंस ऑफ लेट श्री जतिंदर पाल बंसल जी, उनसे सीखने के बाद जब मैंने मेरा मार्गम कंप्लीट कर लिया था और मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस यहाँ मुंबई में हो चुका था, उसके बाद विद गॉड ग्रेस एंड लाइक हमारी नृत्यांजलि संस्था को विदेश स्विट्जरलैंड में परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। तो वहां पे इंडिया ग्रीन करके फेस्टिवल होता है जो कि विच इज हेडेड एंड लेड बाय श्रीमती अंजुम अमृतन जी। शी इज रियली too much towards Indian art and culture. She promote art and culture all over the world. So हमें वहाँ पे बुलाया गया था and then ये मेरे गुरु डॉक्टर तुषार गुहा जी का विजन था कि अनिल आप ये परफॉर्मेंस, मेरे साथी कलाकार जो है वो श्रीमती संगीता सावंत है और मेरी वन ऑफ बहुत ही क्लोज एंड बेस्ट फ्रेंड है। तो हमें उन्होंने कहा कि आप दोनों ये डांस जो है बहुत ही सुंदर नृत्य है, इससे आप लोग इस स्पेस में प्रेजेंट कीजिए। और ये हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे, बाजल सिटी में रुके थे। आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस का नाम क्या था, बट देन बाजल सिटी में थे हम वहाँ पे। एंड वहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए, उसमें से एक परफॉर्मेंस जो था लाइक इंडियन वेडिंग फेस्टिवल, लाइक यहाँ पे जैसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं कि बहुत सारे जगह पे एक साथ बहुत कुछ चलता रहता है, तो हम वी वर जस्ट रनिंग, इस स्पेस में परफॉर्म किया, फिर 6 घंटे बाद किसी और जगह परफॉर्म करना है, ऐसे। सो दैट वाज द जर्नी अबाउट दिस परफॉर्मेंस एंड दिस वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल डू इट डांस परफॉर्मेंस इन स्विट्जरलैंड एट बाज़ल। तो ये भरतनाट्यम का ये कौन सा परफॉर्मेंस है? ये भरतनाट्यम का जी वो शंभो, ये शिव स्तुति है। अच्छा, ये शिव स्तुति है जी। इट्स ऑल अबाउट शिवा, लाइक उसमें आपने देखा होगा, उसमें जो कहा गया गंगाधर मतलब गंगाधर शंकर, इट्स ऑल अबाउट शिवा। शिवा के जटा से जो गंगा माता गंगा बह रही हैं, या फिर उनकी जो पोशाक है, माँ पार्वती जिस हिसाब से शिव जी को पूजती हैं, सो वो सारा एलिमेंट्स हमने इस प्रेजेंटेशन में दिखाने की कोशिश की है। तो ऑडियंस ने बहुत अच्छा कमेंट्स किया है, उनके लिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। दीप्ति सिंह जी वो लिखे हैं, मिस्टर अनिल कुमार सिंह इज रियली हार्ड वर्किंग पर्सन। यस, आई ऑल्सो नो इट वेरी वेल because I had a chance to share the stage with him in Agra and in Bangladesh. So I also know it very well. He is very hardworking. And Sangeeta Singh ने लिखा good, और कौशिक पोद्दार जी ने फिर एक क्वेश्चन किया, why art is important to develop social, economical and political scenario. Okay, all right. So thank you कौशिक जी। जी जी। तो यही आप इनका आंसर देने की थोड़ा कोशिश कीजिए कि या श्योर नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सी, सबसे पहले सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल। सोशल में ऐसे क्या कहूंगा कि आर्ट जो होता है वो इंसान को इंसानियत सिखाता है। इफ आई पुट इट इन कॉम्पैक्ट वर्ड, कि आर्ट से ही, जैसे कि हमने पहले बात किया कि आर्ट से एक पर्सन का ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, उसके इनर इमोशंस, उसके आउटर अपीयरेंस, उसका आउटर ऑरा पर्सोना, उसका जो रेजोनेंस रिफ्लेक्ट होता है, तो वो डेवलप होता है ऑफ कोर्स आर्ट से। सोशली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंपैशनेट होना बहुत जरूरी है, रीजनिंग कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सोचने की, समझने की क्षमता, और उसके बाद फिर उसके ऊपर एक्शन, ये सारी चीजें हमें आर्ट में सीखने को मिलती है। आर्ट हमें, एज आई सेड, इट गिव्स अस सोशली, इट मेक्स अस मोर अप्रोचेबल टू द मास। दैट्स सोशल। पॉलिटिकल या फिर मैं इकोनॉमिकल, दोनों के लिए मैं ये कहूंगा कि भारत देश जो है, हमारा देश जो है, वो पूरे विश्व में बहुत उम्दा आर्ट से ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह है। भारत में एक
multiple colored, multiple, you know, like अगर मैं कहूँ कि रीजनल, अलग अलग रीजनल के लोगों का अलग अलग व्यक्तित्व, अलग अलग संस्कृति एक जगह पर दिखाई देती है. लाइक बहुत सारे कलर्स, अगर मैं उसको और छोटे शब्दों में कहूँ तो बहुत सारे, लाइक जैसे कि बहुत सारे डांस फॉर्म्स है हमारे भारत देश में और विदेशों में भी है. भारत, अगर मैं स्पेसिफिकली, अगर मैं इसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सेगमेंट से बात करूँ तो भारत के इतने बड़े देश में 130 करोड़ की जनता में इतने सारे आर्टिस्ट हैं, इतने सारे शिल्पी है, इतने सारे आर्ट फेस है, आर्ट स्टॉलवर्ड्स है, उनके इतने सारे स्टूडेंट है जो कि बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं. तो जब हम ये जो भी हमने सीखा है इसको हम जब वर्ल्ड सेगमेंट में, जब वर्ल्ड ग्लोबल स्पेस पे जब हम लेकर जाते हैं तो वहां पे ही, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फिर से मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा. जब मैंने ये भोशंबो वहां पे किया था बाजल में, स्विट्जरलैंड में, तो वहां के लोग जर्मन लैंग्वेज, वहां पे उनको नहीं समझ में आता ये क्या बोल, मतलब उस लैंग्वेज का मतलब क्या है. बट देन वो दे वर सो मच, वहां पे इतनी भीड़ थी, इतने सारे लोग थे, वो लोग बस ये देख रहे थे कि ये जो कलरफुल कॉस्ट्यूम है, ये जो म्यूजिक जो बज रहा है, इसमें क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, ये सिंगर क्या गा रहा है, ये जो कॉस्ट्यूम को, इसके अलग अलग जो ऑर्नामेंट्स है, इसे क्या कहते हैं. अंडरस्टूड. So on an international league, international platform, people are so enthusiastic, people are so interested to know about it. So that itself gives us an indication that we are so enriched in as far art and culture concerned. So जब आर्ट और कल्चर, जैसा कि मैंने अपने कुछ इनिशिएटिव में कहा है, और कौशिक पोद्दार जी भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि जो कि वो हमेशा कहते हैं कि आर्ट एंड आर्टिस्ट आर प्राइड ऑफ नेशन. एंड क्यों हम ऐसा समझते हैं? क्योंकि आर्ट जो है वो हमारे देश को एक करता है, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है, ग्लोबली हमें एनरिच करता है, ग्लोबली हमें स्ट्रांग बनाता है और ग्लोबली हमें यूनाइटेड करता है. सो यस, art is very, very, very important in all these three segments. Politically, I will not say much, but then it's, of course, it's the sum up is that art is very, very, very essential factor to, what do you call it, make all this, what do you call it, the social, economical, political arena more bright. থ্যাংক ইউ. তো কৌশিক পোদ্দার জি, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এত সুন্দর একটা কোশ্চেন করার জন্য আমাদেরকে, এবং আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন. अनिल जी ने बहुत कोशिश किया बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने के लिए. तो सुमन जी, मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि व्यूअर्स, ये जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरे पर्सनल भाव है. तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर इसमें कुछ भी गलत कह जाऊं तो छोटा समझ के just apologize, माफ कर दीजिए. But this is what I feel. सबका हक है अपना पर्सनल व्यू शेयर करने के लिए. और मेरे ख्याल से आपका जो ये एक्सपीरियंस, आपने इतनी अच्छे कंट्रीज में परफॉर्म किया है, तो इतने स्टेज में परफॉर्म किया है, इतने सारे पर्सन्स के साथ आपकी इंटरेक्शंस हुआ है, तो यही हम लोग के लिए बहुत एक मतलब शिक्षणीय बात बन जाता है. वी आर ईगर टू हियर यू ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. थैंक यू सो मच. या so you have performed in abroad, you have performed in the folk forms, the Ravindrik Nritya, and also the classical forms. So which form do you think they accept? They are more eagerly. They, जैसे आप बोल रहे थे कि they are eager to know about your costume, about your ornaments. जी नहीं एक्चुअली नहीं सुमन जी, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इनफैक्ट हमारे नेबर कंट्रीज के भी जो आर्ट एंड कल्चर्स हैं, अगर हम लोग वर्ल्ड अरीना में जाएं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाएं, तो दे जस्ट वांट टू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट आर्ट, व्हाटएवर वी आर प्रेजेंटिंग. चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे वो कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, सतारिया, या फिर राविंद्रिक नृत्य और इंडियन कॉन्टेम्पररी डांसेस, लाइक तो ये सारी चीजें दे वांट टू नो, दे जस्ट वांट, दे आर सो ईगर. आई मीन वहां पे ना मैं कैसे कहूँ,
कि अच्छा ठीक है, मैं एक और आपको छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि हमने लाइक जब मैं डॉक्टर तुषार गुहा जी के साथ, उनकी टीम के साथ, पतंजलि मेरे दोस्तों के साथ जब मैं ये विदेश टूर पे था, तो वहां पे लाइक हमारे जो लीडर थे श्री गिरीश दलवी जी, तो उनसे आई थिंक किसी एक जन ने आके पूछा कि वाई विमेन ये जो ये मांग टीका ये क्यों लगाती है, मतलब डांस में ना टीका लगाते हैं ना, तो जो टीका है टीका वो क्यों लगा है। तो इससे ही पता चलता है कि वो कितने, आई विल नॉट से इन्फैक्चुएशन, आई विल से वो कितने ईगर है, दे रियली वांट टू नो, दे जस्ट वांट टू, मे बी आई विल नॉट, of course I can say this also very proudly that they want to adapt, they want to know about sari, they want to know about bindi, they want to know about the tradition, art and culture, how like इसका हिस्ट्री क्या है, आर्ट एंड कल्चर का हिस्ट्री क्या है, कैसे ये आगे बढ़ा है, ये सारी चीजें वो जानना चाहते हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट भरतनाट्यम, कथक या फिर राविंद्रिक नृत्य, इट्स अबाउट ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ आर्ट दे वांट टू नो, एंड दे आर वेरी मच वेलकमिंग अस फॉर ऑल ऑफ दीज। একটু চলে আসি কমেন্টসে। ধ্রুব সিং ने लिखा है डांस वाज वेरी गुड सर। और শাওন Thank you. শারিয়ার বাংলাদেশ से लिखा है খুব ভালো লাগছে দাদা। তো আমাদেরও খুব ভালো লাগছে, তুমি দেখছো, কমেন্ট করেছো, তো এইভাবেই দেখতে Okay. থাকো, কমেন্ট করতে থাকো। দীপ্তি সিং ने लिखा रियली नाइस परफॉर्मेंस मामा। তো এইভাবে আরো কমেন্টস আসতে থাকবে, আমরা ততক্ষণে আমরা নেক্সট পারফরমেন্সটা দেখে নিই। तो हम लोग नेक्स्ट परफॉर्मेंस की ओर बढ़ते हैं। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा सुमन जी ऑडियंस के लिए, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स। इस जो भी व्यूअर्स हैं इसमें से कुछ मेरे एक्सटेंडेड फैमिली है, कुछ मेरे बहुत ही नियर डियर वंस है, तो उन सभी को थैंक यू सो मच। आप लोग इतना, आई मीन यू आर देयर विद अस एंड आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू। तो আমরা অনিল কুমার সিং এর নেক্সট পারফরমেন্সটা দেখে নিই। जी
আমরা আবারও একটা অসাধারণ রবীন্দ্র নৃত্য দেখে নিলাম। तो আমি আসবো अनिल जी কাছে। अनिल जी ये डांस के बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पे हुआ था ये? जी actually okay सुमन जी, let's put it like this. I will just tell and you have to assume कहाँ पे हुआ था ये हुआ था सिटी ऑफ आर्ट में। Okay. बताइए। ये कोलकाता हुआ में। था, कोलकाता में हुआ था। हाँ जी, कला मंदिर में हुआ था एंड this was presented by one of the very prime face, I think, देवजानी रॉय माशी एंड जयंत राय जी। आई थिंक उनको बहुत इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, काफी नोन पर्सनालिटी आर्ट फेस हैं वो, फ्रॉम प्रांगण। So this was, as much I remember, this was Bhave Anubhave. This was the title, Bhav Anubhav, and it was tribute to all the eminent poets of Bangla. उनको ये ट्रिब्यूट दिया गया था और ये कला मंदिर में कोलकाता में हुआ था, जिसमें कि अच्छा ये मुझे इनिशिएट किया था, मुझे ये परफॉर्मेंस के लिए प्रोत्साहित मोटिवेट किया था मेरे एक बहुत ही डियर फ्रेंड ने, नीलेश सिंघा। ही इज अ वेरी वर्ल्ड लेवल भरतनाट्यम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। सो ही टोल्ड मी दैट अनिल ये पर्टिकुलर डुएट डांस हो रहा है, ये सॉन्ग हो रहा है, आई फाइंड यू सूटेबल फॉर दिस, सो व्हाई डोंट यू जस्ट कम फॉर इट, व्हाई डोंट यू जस्ट लेट्स डू इट। सो ही मोटिवेटेड मी, ही टोल्ड मी लेट्स गो। सो फिर मैं वहां गया, मैं राय से मिला और उन्होंने परफॉर्मेंस देखा मेरा, एंड देन शी सेड परफेक्ट। और उसके बाद फिर आई थिंक हमने 2-3 रिहर्सल की थी। अच्छा, मेरे साथ जो परफॉर्म कर रही हैं वो शुमांगिका भट्टाचार्य जी है, जो कि एक वर्ल्ड अक्लेम्ड कथक आर्ट से एका सिन्हा जी की स्टूडेंट है, एंड शी इज ऑल्सो वंडरफुल आर्टिस्ट। तो उनके साथ मेरा ये डुएट परफॉर्मेंस हुआ, जो कि मैंने 3-4 रिहर्सल करके आई प्रेजेंटेड इट, एंड आई होप द ऑडियंस लाइक्ड इट। सो बेसिकली दिस वाज द ट्रिब्यूट to all those poets of Bangla जिन्होंने की माइलस्टोन क्रिएट किया हमारे आर्ट हिस्ट्री में। तो अच्छा, इसको हाँ सुमन जी, एक चीज मैं बोलना भूल गया। हाँ। इसे शायद इसमें जो इन्होंने गाया है सुष्मिता मित्रा एंड अभिजीत जी ने गाया था, जो कि बहुत ही आई थिंक कलकत्ता में आप जानते होंगे शायद, बहुत ही बड़े সিঙ্গার। তো আমি একটু কমেন্টসে চলে আসি। মোহাম্মদ দীপ আমাদের একজন খুব মানে রেগুলার দর্শক বলা চলে এবং মানে টপ শেয়ারারও বলা চলে। উনি আবার লিখেছেন শুধু লন্ডন থেকে, উনি লিখছেন যে সো সুইট পারফরমেন্স। আবার লিখেছেন যে গ্রিটিংস টু অল দ্য ডান্সার্স, and उन्हें आबाद लिखेছেন आर्ट एंड कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एग्री विथ यू। सो ये भी एक डांसर है अनिल जी, ये और लंदन से देख रहे हैं, तो आप इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? Thank you so much. I really appreciate, and I'm so happy that I don't know what's the time there, but then thank you so much that you joined in for the live streaming, and I really appreciate it, and gratitude for being there. Thank you. তো দীপদা এইভাবেই আমাদের সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন, কমেন্টস করতে থাকুন। আপনার কমেন্টস পেলে সত্যি আমাদেরও খুব উৎসাহ হয় বা আমরা পড়ে শোনাতে ইচ্ছে করে। তো আপনি আরো বেশি বেশি করে লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করে যান। আর বাংলাদেশ থেকে শুভ্রা সেনগুপ্ত, উনিও একজন নৃত্যগুরু, উনিও লিখে বেস্ট উইশেস দিয়ে জানিয়েছেন আপনাকে। থ্যাংক ইউ। তো আমরা সময় তো পেরিয়ে যাচ্ছে, আমরা তাড়াতাড়ি করে আরেকটা পারফরমেন্স দেখে নিই, ঠিক আছে? জি, ওকে, बिल्कुल। We go to the next performance. Yes, sure.
गजाननम् भूत गणादिसेवितम् कपित्त जम्बूफल सारभक्षितम् उमासुतम् शोक विनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् गजवदन करुण सदन श्री गजवदन करुण सदन श्री गजवदन करुण सदन शङ्करबाल लम्बोदर सुन्दर गजवदन करुण सदन शङ्करबाल लम्बोदर सुन्दर गजवदन करुण सदन അജനമതേന്ദ്രനും മുനിവരും പണിയും അജനമതേന്ദ്രനും മുനിവരും പണിയും അജനമതേന്ദ്രനും മുനിവരും പണിയും അജനമതേന്ദ്രനും മുനിവരും പണിയും പങ്കജ ചരണ ചരണം ശരണം പങ്കജ ചരണ ശരണം ശരണം ശ്രീ ഗജവദന കരുണ സദന ശങ്കരബാല ലംബോദര സുന്ദര ഗജവദന കരുണ സദന நீ மூவுலகு காதாரம் நீயே சிவாகம மந்திர சாரம் நீயே மூவுலகு காதாரம் நீயே சிவாகம மந்திர சாரம் நீயே வாழ்விலன் ஜீவாதாரம் நீயே வாழ்விலன் ஜீவாதாரம் நீ அருள்வாய் சுமுகா ஓங்கார நீ அருள்வாய் சுமுகா ஓங்கார ஸ்ரீ கஜவதன கருண சதன சங்கரபால லம்போதர சுந்தர கஜவதன கருண சதன சங்கரபால லம்போ சுந்தர
আমরা ফিরে এলাম অনিলজির একটা অসাধারণ ভরতনাট্যম পারফরমেন্স দেখে। আমি আসছি কমেন্টসে। বাংলাদেশ থেকে দীপ দত্ত আকাশ লিখেছেন অনেক অনেক শুভকামনা রইলো। উনি আবার লিখেছেন খুব ভালো লাগছে, আজ সুমনদার সাথে উপস্থাপনার অনুষ্ঠান উপভোগ করছি। আচ্ছা, তো প্রত্যেক দিনই তো তনুদিকে তোমরা উপস্থাপনায় পাও, কিন্তু আজকে কোনো কারণবশত উনি আসতে পারেননি। তো এরকমই আমরা দুজন মিলিয়েই কোনো না কোনো দিন তোমাদের সামনে আসবো। আর তুমি তো অনেক ভালো উপস্থাপনা করতে পারো, অনেক সুন্দর কথা বলতে পারো, সেটা তো আমরা শ্রীমঙ্গল বিদ্যালয়ে বার্ষিক অনুষ্ঠানে গিয়েই আমরা দেখেছি। আর লাইভেও তুমি খুব সুন্দর কথা বলেছো। তো এইভাবে আমাদের সাথে থাকো, কমেंट्स करते থাকো। और कौशिक पोद्दार जी और एक लिखे हैं समय के साथ साथ काल अपना रुख बदला, आज लाइव प्रोग्राम परफॉर्मिंग आर्ट्स डिजिटल मीडियम में बदल रहा है, इसका इम्पैक्ट आप महसूस करते हैं? yes, no, actually again it's a very good question. Actually ये देखिए, इससे बड़ी बात तो जो हमारा आर्ट, जो हमारा परफॉर्मेंस, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, अगर मैं परफॉर्मेंस नॉट ओनली डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, थिएटर, अगर मैं इन सारी चीजों की बात करूँ, तो जो ऑडिटोरियम में देख के जो कनेक्टिविटी थी, जो परफॉर्मर को जो रेजोनेंस मिलता था फ्रॉम द ऑडियंस को जो द कनेक्टिविटी फील होती थी विद द वट एवर स्टोरी इज ऑन, इज हैपनिंग ऑन द स्टेज, ये सारा जो वन टू वन कनेक्टिविटी था वो थोड़ा सा मिसिंग है। बट जो कि ये सिचुएशन, ये पैंडेमिक सिचुएशन की डिमांड है कि हमें वर्चुअली सब कुछ करना है, एंड आई होप कि ये बहुत लंबे समय तक ना रहे। बट ये तो मैं बता रहा हूँ कि क्या साइड इफेक्ट हुए हैं इसके वर्चुअल परफॉर्मेंस, वर्चुअल डिजिटल माध्यम के। बट इससे अच्छी बात ये भी हुई है कि इससे ना बहुत सारे जो मैंने महसूस किया, लाइक अब हम देखेंगे, सुमन जी आप अग्री करेंगे कि और कौशिक जी भी एंड द व्यूअर्स आल्सो, कि बिकॉज ऑफ डिजिटल बहुत सारे ऐसे स्किल आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत अलग अलग जगहों पर हैं, बहुत सारे ऐसा बड़ा दायरा भी जो कि इतने प्रिविलेज्ड नहीं है, इतने उनके पास इतने व्यवस्थाएं नहीं है टू सी दिस इन दी ऑडिटोरियम और टू इसका उपभोग करने की, इसको देखने की, समझने की। तो डिजिटल में जहाँ कहीं भी लाइक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां पे वो जाकर देख सकते हैं, वो कनेक्ट कर सकते हैं, सीखने वाले जो नए जनरेशन जो स्किल्स है वो सीख भी सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे मैं देख रहा हूँ, लाइक आई थिंक ऑन एन इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो मैं देख रहा हूँ कि हर कोई डिजिटली कुछ न कुछ कर रहा है। तो इट्स नाइस, एक बहुत बड़े वर्ग के लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड एटलीस्ट इस पेंडेमिक सिचुएशन में जब हम सभी अपने घरों में बंद हैं, उस समय में लाइक पीपल आर कनेक्टेड वाया दिस, तो इस वजह से ये एक अच्छी बात है, जैसे कि हम सभी कनेक्टेड हैं, हम सभी बात कर पा रहे हैं, अपने आचार विचार आदान प्रदान कर पा रहे हैं, वी आर एबल टू इंटरैक्ट विथ ईच अदर। So that way, digitally, yes, it's apt, it's required, but it is for a periodic, for a particular period. ये हमेशा नहीं रहेगा। जब तक है हमें इसे साथ लेकर चलना है और इसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। थैंक यू। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये ज्यादा देर तक ना रहे। तो आप इसमें जैसे रेम्यूनरेशन की बात कर रहे थे, तो इसमें तो देखिए जैसे आर्टिस्ट को इतना सम्मान नहीं दिया जाता है, तो बहुत मतलब वो ऐसे फ्री परफॉर्मेंस करते हैं, तो इसके विरोध में भी कई आर्टिस्ट ऐसे जो हम लोग देखते हैं। सुमन जी, आई थिंक आप मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे फ्री पोर्टल है जहां पर कि लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं, देख सकते हैं परफॉर्मेंस। ऐसे बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं वर्चुअली, जिसको कोई भी उसमें ज्वाइन कर सकता है, देख सकता है परफॉर्मेंस, उसको अप्रिशिएट कर सकता है, उसे सीख सकता है। तो डिजिटली ये बहुत इजी हुआ है। मैं परफॉर्मेंस मतलब जो कि टिकट शो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी जो इकोनॉमिकल टिकट ही है उसका भी तो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का अल्टीमेट मैसेज ये है कि वर्चुअल होने की वजह से डिजिटली बहुत बड़ा समुदाय जो है वो कनेक्ट कर पा रहा है एक दूसरे से, एक दूसरे के स्किल को देख पा रहा है, समझ पा रहा है, या तो छोटे कॉस्ट से,
छोटा टिकट शो दे करके पैसे दे करके, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट. सो दैट्स द गुड इफेक्ट ऑफ वर्चुअल डिजिटल माध्यम. दैट्स व्हाट आई वाज स्पीकिंग अबाउट. Now you see, many artists are against this, that we are performing, we are not getting any remuneration, we are performing free. So what do you think from your side? Are they not given the proper, जो कहते हैं उसको, जो remuneration हम नहीं दे पा रहे हैं, तो do you support this, Yeah, or actually, you are against this? नो एक्चुअली देखिए, अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहूँ सुमन जी, तो अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या. जो आर्टिस्ट है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मैं फैमिली चाहता हूँ, शायद मुझे वो इंटेंट नहीं समझ में आ रही होगी. अगर मेरा सब कुछ आर्ट पे डिपेंडेंट रहता, अगर मेरा पूरा दिनचर्या मेरे क्लासेस लेकर के डांस परफॉर्मेंस से या फिर मेरे लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन से चल रहा होता, और तब तो ये जो मतलब कोरोना सिचुएशन है, सब कुछ बंद हो गया है, तब तो मेरी कोई आय रहती ही नहीं. तो मैं उन लोगों से रिलेट कर पाता हूँ कि जो लोग इस समय बहुत ही बड़े लेवल पे इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 की वजह से, और उनको कोई भी मटेरियलिस्टिक सपोर्ट या फिर मटेरियलिस्टिक सुविधाएं कहीं दिखाई नहीं दे रही है. तो समय की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि इसमें और डिटेल में तो मैं नहीं कहूंगा कुछ, बट देन मैं ये जरूर कहूंगा, to all that art stalwarts, art pays, art practitioner, और जो भी कुछ यंग जनरेशन में भी जो भी कुछ करने की जज्बा रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, या फिर विजन रखते हैं, कि वो सभी आगे आए, एकजुट हो, और ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, ऐसे जो कलाकार हैं जो कि प्रिविलेज नहीं है, जिनका सब कुछ परफॉर्मिंग आर्ट पे ही डिपेंड करता है, उनके पूरा जो घर बार जो सब कुछ चल रहा था वो बिकॉज ऑफ ब्रेड बटर, ये डांस से, परफॉर्मिंग आर्ट से ही चल रहा था, तो वो तो जब ये पेंडेमिक सिचुएशन है, सब कुछ बंद हो गया, तो वो क्या करेंगे फिर. तो वो ऐसी जगह पे जाना चाहेंगे जहां पे परफॉर्मेंस करे और उन्हें कुछ न कुछ मटेरियलिस्टिक सपोर्ट मिल सके, और वो कुछ न कुछ में, वेदर इट्स फूड, वेदर इट्स मनी, दे जस्ट वांट हेल्प. और आप भी एग्री करेंगे सुमन जी कि हमारे से बहुत सारे शिल्पकार, बहुत सारे कलाकार हैं जो कि देश के रूरल एरिया में, गांव में है, इतनी टैलेंटेड है, इतनी प्रतिभा है उनके में, जो हमारे आर्किटेक्चर या फिर जो बुनते, क्या बोलते हैं उसे, चादर बुनते हैं, या फिर कढ़ाई वाला कारीगर जो है, तो इन सब का तो लाइक सब कुछ बंद हो गया. अब धीरे धीरे शुरू हुआ विद गॉड ग्रेस. तो क्या करेंगे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, क्या करेगा, परफॉर्मेंस नहीं है. तो ये वर्चुअल माध्यम पे जब वो उसी जगह जाना चाहेंगे जहां पे उनको कुछ मटेरियलिस्टिक सपोर्ट मिलेगा. और हमें जो प्रिविलेज्ड हैं, जो थोड़ा बहुत भी कैपेसिटी रखते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं, आई पर्सनली फील, बिकॉज मैं अपना एग्जांपल सबसे अच्छा दे सकता हूं कि मैं कर भी रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि ऐसे लोग आगे आए, और एक पर्टिकुलर समुदाय आर्टिस्ट को जो कि बिल्कुल भी प्रिविलेज नहीं है, जो रूरल एरिया में है, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, और टोटली उनका सब कुछ काम वाम सब बंद हो गया है, उन्हें फाइनेंशियली, परफॉर्मेंस, जिस भी तरीके से सपोर्ट करें, उन्हें मोटिवेट करें, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर हमारे भारत का, हमारे पूरे देश का प्राइड है, और ये जो आर्टिस्ट हैं यही हमारे प्राइड को और आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके जाएंगे. सो वी ऑल शुड कम, आई मीन बी टुगेदर इन दिस एंड डू समथिंग अबाउट इट. सो यस, पेड परफॉर्मेंसेज होनी चाहिए फिलहाल. जब बहुत अच्छा आपने कहा है. तो हम लोग को सबको ऐसे ही सोचना चाहिए ताकि हम सबके साथ हो. तो हमारा टाइम तो निकलते जा रहा है, हम एकदम एंड के करीब तक पहुंच गए हैं, तो जल्दी से और एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं. बिल्कुल. ओके, ठीक है. तो हम अनिल जी का नेक्स्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं. सुमन जी, कौन सा परफॉर्मेंस बाकी है, कितने और भी परफॉर्मेंस बाकी है, राइट? हाँ, आपने जो जो भेजा था सब एक के बाद एक दिखा रहे हैं. बस ठीक है, ओके, थैंक यू.
মাধবী বনে মধুগন্ধে মোদিত মোহিত মন ধর বেলায় কোন দেবতা আসে। আজ মোরে সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়, শুধু একা পূর্ণ তুমি, সর্ব তুমি, বিশ্ববিধাতার গর্ব তুমি, অক্ষয় ঐশ্বর্য তুমি, এক নারী সকল দৈন্যের তুমি মহা অবসান, সব সাধনা তুমি শেষ পরিণাম। সে আমি যে আমি নই, আমি নই, হায় পার্থ হায়, সে যে কোন দেবের ছলনা। যাও যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর, সূর্য বীর্য মহত্ব আর দিও না মিথ্যার পায়ে। যাও যাও, ফিরে যাও, ফিরে যাও বীর। এ কি তৃষ্ণা, এ কি দাহ, এ যে অগ্নিলতা পাকে পাকে ঘেরিয়ে আছে তৃষ্ণার্ত কম্পিত প্রাণ, উত্তপ্ত হৃদয়ে ছুটিয়া আসিতে চাহে সর্বাঙ্গ। তো আমরা একটা অসাধারণ পারফরমেন্স দেখে নিলাম এবং আমরা সবাই বুঝতে পারছি যে এটা কোন নৃত্যনাट्य, चित्रांगदा आई थिंक ना। अनिल जी थोड़ा बताइए तो ये कैसे संभव हुआ, कहाँ पे हुआ? अच्छा, ये सुमन जी, ये मेरा सबसे पहला रविन्द्रनाथ टैगोर जी ठाकुर का नृत्य नाट्य मैंने किया था, सबसे पहला एज ए लीड। ये मैं नृत्यांजलि इंस्टीट्यूट में जब मैं सीख रहा था, परफॉर्म कर रहा था, तो वहां पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी और ये मैंने किया था परफॉर्मेंस कलांगन इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस श्रीमती मौली सिद्धार्थ जी के साथ, जो कि डिसाइपल है लेट पद्म विभूषण श्री एम.टी. जोशी जी की। तो उनके साथ मैंने ये चित्रांगदा नाट्य किया था। और आगे फिर कुछ बात है मुझे उन्होंने शुरुआत में की थी कि ये पूरा जो स्क्रिप्ट था सुमन जी, और ये मेरा मतलब अभी जब शुरुआत में भी आई थिंक दिस वाज इन 2004 और 5, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, 2005। सो उस समय सोचिए कि मैं इतना स्क्रिप्ट मुझे दिया गया और इंग्लिश में, देवनागरी में लिखा था उन्होंने, और अगेन मौली दीदी ने मुझे इतने अच्छे तरीके से समझाया, उसका भाव समझाया, और फिर उसके बाद फिर अलग से मैं मेरे गुरु जी के पास आता था, डॉक्टर गुहा, तुषार गुहा सर के पास, तो वो मुझे समझाते थे कि भाई इसमें ये तुम ऐड कर सकते हो, इसको इस तरीके से कर सकते हो। सो इस तरीके से ये नृत्य नाट्य का पॉसिबल हुआ। आई कुड प्ले द कैरेक्टर ऑफ अर्जुन। अच्छा, इसमें जो ये परफॉर्मेंस है, इसमें राका रॉय जी हैं, शी इज अगेन एन राविंदिक नृत्य परफॉर्मर। जब वो यहाँ पे थी, अब तो शायद वो कोलकाता में है। सो उन्होंने शुरूपा का कैरेक्टर किया था, अगेन अ वंडरफुल लेडी एंड वंडरफुल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट। सो यहाँ से इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के बाद से, बिकॉज आप व्यूअर ऑल्सो या फिर कैलकाटा ऑडियंस जो अगर होंगे, बांग्लादेश बांग्ला ऑडियंस जो होंगे, वो ये जानते होंगे, दे मस्ट बी नोइंग दैट this whole Chitrangada has so beautiful various segments of lyrics involved in it, so many emotions, so many feelings, so many what do you call it, a mixed emotions, a complete package, Chitrangada. So it was amazing to have this experience, and I'm really obliged and thankful to God and my gurus that I could do this. And from here, my all-on, development as an artist, as a performer, as a Ravindrik performer started. So Gayatri PR, she has written beautiful performance, sir. And Thank you. Mohammad Deep from London, he has also written wonderful performance, mind-blowing performance. So thank you, आपने देखा और इतना अच्छा comments किया आप लोगों ने। और एक कमेंट भी आया है, बहुत सारे फ्लावर्स आपके बहुत ही एक स्पेशल फ्रेंड की तरफ से, मुफस्सल हुसैन, उन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स देके आपको बेस्ट विशेस दिया है। तो अब हम अपने फाइनल परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, आई एंड माई सेल्फ। तो यही हम आज का आपका आखिरी परफॉर्मेंस होगा, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। I myself, okay. Okay. Well, I and myself,
Actually, मैं बहुत शॉर्ट में इसको बताता हूँ सुमन जी. I and myself initiated in my mind. It started growing in my mind when I first visited Switzerland. And हमारे परफॉर्मेंस के बाद जो हमें रिलैक्स होने का टाइम मिलता था, we used to just go for roaming. तो मैं उस दरमियान में घूमते घूमते जब हम स्विट्जरलैंड में थे, उस समय हम एक इंटरलैकन सिटी में गए थे. और वो इतनी ब्यूटीफुल जगह है, मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो गया कि मतलब मैंने बहुत सारे सपने उसके साथ आज तक मैं देखता आ रहा हूँ, मतलब उस सिटी को लेकर के. तो वहां पे जब मैं वापस मुंबई आया, अपने काम में व्यस्त हो गया, that time I had again an wish to, oh my god, I should go there again. So because of some reason I couldn't go, or there wasn't any opportunity, I can say there wasn't any invitation for particular period. So I was just thinking, when will I be able to go there? So I used to just think about it. So from there, this whole idea came, because when I used to just think, I used to go back in that scene where I used to, cherish those moments, the path where I walked, the place where I had been to, I mean, the people I met, those, overall the scenery, overall atmosphere of Interlaken. So from there, this idea came in my mind that I myself, and my mind, which is myself, I am here in India, I am here in Mumbai, I am here at my house, and myself is somewhere. My idea is somewhere in Switzerland. So physically I can't go there, but my mind can go, can cherish it, can feel it, and come back to me. So this is the idea of I and myself. And from there I started developing, I started thinking more about it, and then somehow here at like as you said, Mufassal Hussain. So Mufassal Hussain ji, I met him at Terence Lewis Dance Company on social, in some performance, I don't remember that, but then we met, and there it clicked that if somebody can portray this myself for that particular arena of presentation, he's the one, because we all know that. I mean, Suman ji, is such a hardworking artist, he's such a wonderful person. So, ideally, he was the apt one who could portray what I wanted. So, this is how we started, and we did it, and we presented it at different countries, including Bangladesh. And I hope and I wish and I know that people liked it. And those who don't, I apologize, maybe next time they will. So I think before we end up, just watch this wonderful performance, and I will just come back with Mr. Anilji. So first let us watch this wonderful performance, okay? जी, बिल्कुल. मोहिनी ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী তুমি মহাবিদ্যা আদা শক্তি হে বিশ্ব তোমারি বিভূতি মহাবিদ্যা আদা শক্তি হে বিশ্ব তোমারি বিভূতি তুমি শক্তি জ্ঞানদাত্রী তুমি শক্তি জ্ঞানদাত্রী প্রেমানন্দ দায়িনী মা প্রেমানন্দ দায়িনী ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে দুর্গে দুর্গতি হারিণী
অহং নাশিনী হৈমবতী, তুমি অহং নাশিনী, জগৎ জনের রিপুদলনী, জগৎ জনের রিপুদলনী, জগদ্ধাত্রী ত্রাণকারিণী, জগদ্ধাত্রী ত্রাণকারিণী, তুমি আদি জননী মা, তুমি আদি জননী ভুবন মোহিনী, ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে, দুর্গে দুর্গতি হারিণী, তুমি মহাবিদ্যা আদা শক্তি, হে বিশ্ব তোমারি বিভূতি, তুমি শক্তি জ্ঞানদাত্রী, তুমি শক্তি জ্ঞানদাত্রী, প্রেমানন্দ দায়িনী, প্রেমানন্দ দায়িনী, ভুবন মোহিনী বন্দি তোমারে, দুর্গে দুর্গতি হারিণী, দুর্গে দুর্গতি হারিণী। মা 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 আমরা অবশ্যই আই অ্যান্ড মাইসেলফ দেখবো, কিন্তু তার আগে যেহেতু আমাদের সামনেই নবরাত্রি, মানে আগমনী দুর্গাপুজো তো এসেই গেল, সেই জন্য অনিলজির এই পারফরমেন্সটা মনে হলো যে বাদ পড়ে যাচ্ছে, তাই ওটাও আমরা দেখিয়ে দিলাম। तो अनिल जी, ये सामने ही तो नवरात्रि आने वाला है, तो आप लोग कैसे मनाते हैं नवरात्रि? जी, नवरात्रि तो पूरे भारत देश में मनाया जाता है सुमन जी। कलकत्ता में बहुत ही एनरीज, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, बहुत ही बड़े लेवल पे मनाया जाता है, विच इज रियली नाइस। हमारे यहाँ पे भी लाइक घट स्थापना होती है, आप अगर रिलेट कर पा रहे होंगे, घट स्थापना हम करते हैं, एंड लाइक 9 दिन का उपवास होता है, लाइक मेरी मदर करती हैं ये, एंड वो 9 दिन के जो नियम है, वर्शिप के जो वर्चुअल, आई मीन जो रिचुअल्स है, वो सब हम करते हैं। या और कुछ घर ऐसे हैं जो कि मूर्ति स्थापना भी करते हैं, मूर्ति स्थापना के उसके अपने नियम होते हैं जो फॉलो करते हैं। मेरे घर में स्पेसिफिकली, मेरे यहाँ पे मेरी मम्मा 9 दिन का उपवास रखती हैं, एंड लाइक शी या सो दिस इज हाउ नवरात्र मनाते हैं। সো আমরা ফিরে এলাম, এরপরে অবশ্যই আই অ্যান্ড মাইসেলফ দেখবো, কিন্তু আই অ্যান্ড মাইসেলফে যে দুজন শিল্পীকে আমরা দেখতে পাবো, তাদের মধ্যে দুজন শিল্পী আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আমরা ফিরে এসেছি, অনিলজি তো আছেই আমাদের সাথে, এবং সঙ্গে আছেন অনিলজির সাথেই যে ছিল আই অ্যান্ড মাইসেলফে মোফাজ্জল হোসেন ফ্রম বাংলাদেশ। তো তোমাদের দুজনকেই, হ্যাঁ, অনিলজি তো ছিলেনই, আলিফকেও আমাদের অনুষ্ঠানে অনেক স্বাগত জানাই। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আজকে আলিফের জন্মদিন, তো আমরা সবাই আজকে আলিফের জন্য বেস্ট উইশেস, শুভকামনা তো করতেই পারি। হ্যাপি বার্থডে আলিফ, অনেক অনেক শুভকামনা তোমাকে জন্মদিনের। শুনতে পাচ্ছ? वेरी हैप्पी बर्थडे आलिफ। हाँ, तो अनिल जी, आप आलिफ के बर्थडे में कुछ कहना चाहेंगे उसको? हैप्पी बर्थडे टू हिम, हैप्पी बर्थडे टू हिम, हैप्पी बर्थडे टू डियर आलिफ। थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। তো এবার আলিফের কাছে আসি, আলিফ কেমন লাগছে, কেমন ভাবে সেলিব্রেট করছো আজকে জন্মদিনটা? অ্যাকচুয়ালি আমি একটা শুটিং আসছি কক্সেস বাজারে, সো কালকে রাতেই আমি রওনা দিয়েছি আর কি। সো আমার বাজে টাইমটা ওই আমার বাসের মধ্যেই ছিল, তো ওই সময়ে মাটি এবং আমার সাথে ছিল, মিলে ছোট করে একটু
করেছে। তারপর আজকে সারাদিন আমি শুটিং এ ব্যস্ত ছিলাম, এখন আমি বাইরে, বাসায় যাইনি। সো ভালোই কেটেছে বাসার বাইরে। এবং আর এখন তো অনেক বড় হয়েছি, সো ওইরকম তেমন এক্সপেকটেশন নাই যেরকম কাজ হবে এরকম। সো অনেক ওয়েল উইশার্স, দেশের অনেক ফ্রেন্ড সার্কেল, তারপর শুভাকাঙ্ক্ষীরা উইশ করেছে। সো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এই আর কি। তো আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই দর্শক বন্ধুদের আই অ্যান্ড মাইসেলফটা দেখাবো। তো সেইটার বিষয়ে যদি তুমি একটু বলো। অনিলজি তো আমাদের সাথেই আছে, আর অনিলজিকে তুমি আজকে যদি কিছু বলতে চাও নিশ্চয়ই বলে ফেলো আমাদের মাধ্যমে। I can't hear. হ্যাঁ, আমি দর্শক বন্ধুদের আই অ্যান্ড মাইসেলফটা দেখাতে যাব কিছুক্ষণের মধ্যেই। যেহেতু লাইভে আমি মিউট করে ফেলছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো আমার বলার অল্প একটু, সেটা হলো আই মাইসেলফ এর আমার হিস্ট্রি, এটা তৈরি করার আমি এটা কিভাবে হলো, আমি কিভাবে ডেভেলপ করলাম। সো এটা মুম্বাইতে থাকা অবস্থায় অনিল কুমার সিং ওনার সাথে করার আমার সুযোগ হয়েছিল। সো আই ফিলিং লাকি ফর দ্যাট। এবং এটা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক ছিল, যেটা অলরেডি আমরা এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে ছিলাম। স্টিল আমরা এটার মধ্যে এটা ওয়ার্ক করছিলাম, এটাকে নিয়ে আরো এক্সপেরিমেন্ট করতেছিলাম এবং ভবিষ্যতে আরো করব। এবং এটা বডি অ্যান্ড সোল নিয়ে একটা থিম। সো আশা করি যারা যারা দেখেন না এখন মনে হয় এটা প্লিজ দেখানো হবে। নীলকে ধন্যবাদ তার এই প্রজেক্টের জন্য, আমাকে ইনভলভ করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভলভিং ইন দিস প্রজেক্ট। Thank you so much, Mofassel Hussain, for being there. I didn't expect this, and it's really like we should give you the gift, but you gave a gift, which is really a fantastic thing of this live streaming. Thank you so much for being there. So we also wish you a very happy birthday, and may your friendship be everlasting until the end of your life. You two remain together, and this was a lifetime production, I and myself, and you have performed in Mofassel, Sumanji, I just wanted to tell something that as we discussed earlier, that art doesn't have a gender, doesn't have a caste, creed, language. So art is also a friend. We can take each and every artist should take art as a friend, and art is a friend which needs person to express his or her feelings. So this is what I presume, and I and myself is all about that. And Mofassel Hussain could do it very nicely, and I'm really honored and privileged to have him as my co-artist. Thank you so much. So আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব, I and myself দিয়ে শেষ করব। तो जैसे अनिल जी ने कहा कि हर एक्सप्रेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जैसे एक दोस्त की जरूरत होता है, a friend is a friend indeed. So in I and myself we will be able to see all those, how you can express your feelings. So अनिल जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। আর মোফাজ্জল হোসেন আলিফ তো আমাদের সাথে সব সময় প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেই থাকেন। তো আজকে শুভ জন্মদিনে তোমাকে যে আমরা পেলাম, তোমার জন্য অনেক শুভকামনা, আর আশা করব যে তোমার আগামী জীবনে যেন অনেক ভালোভাবে কাটে, আর তোমাদের এই বন্ধুত্ব যেন সারা জীবন থাকে। ওকে, তোমাদের Thank you so much, Rasa Entertainment. Thank you so much, wonderful audience. Thank you so much, all the art fraternity people, art friend, artist friend, and all the well-wishers, lovers who watch this live streaming. Thank you so much for being there. তো আমি দর্শক বন্ধুদের থেকেও বিদায় নিয়ে নিচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে অবশ্যই আই অ্যান্ড মাইসেলফ দিয়ে শেষ করবো। A very special production of Mofassel Hossain Alif and our respected Anil Kumar Singh. ওকে, কালকে আবার দেখা হবে ঠিক রাত 9টায় ভারতীয় টাইম এবং বাংলাদেশ টাইম 9:30। ততক্ষণের জন্য শুভরাত্রি। Namaste. A very warm welcome to one and all. We invite you on a journey of a human body which meets the mind till they unwillingly part ways after the dance of life.
Concept and direction Anil Kumar Singh and Muhammad Mufassal Hussain. Choreography Muhammad Mufassal Hussain and Anil Kumar Singh. Costume Sri Kalaivani Costume and D.S. Ayulu Shivakumar. Photography M&D Clicks and R.J. Bellal for retouch. Music and voiceover Vidwan Sri Ganeshan, Vidwan Sri Sivaprasad NN and Srimati Shashi Ramesh. Audio credits to FME Recording Studio. I am not alone. I have myself. Presenting I and myself. I am born. Being born is my most painful experience and the most joyous one. Traversing the path from within the dark womb to the light outside. With the life force inside me, I, this body, eagerly lights up and bursts into the exploration of this Maya, akin to that ball of cotton when caressed into a wick, soaked in oil, joyfully sways even when it is on fire. I flicker and fleet through this world and taste all its flavors. The first rays of the sun, the beats of my heart, and the fragrance of the earth when kissed by the rain. I see me, this receptacle for all the glorious experiences that I seek. I am greedy for more. As I meet myself and merge with my effervescent mind, I lead it on this journey of life. চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমিঝিম রিমিঝিম রিমিঝিম। As I continue on this journey, spreading my wings wide, my heart explodes and overflows into the sea of my experiences. হংস বলাকার পাখায় যায় উড়ে কচিত কচিত চকিত তড়িত আলোকে মনোমোর হংস
ছলো ছলো তটিনী তরঙ্গে বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে উচ্ছলো ছলো ছলো তটিনী তরঙ্গে মন মোর ধায় তারি মত প্রবাহে কালো তমালো রণ্যে ক্ষুব্ধ শাখার আন্দোলনে মন মোর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নিঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে রিমি ঝিম 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 I have led you through life's road, meandering with joy. Now my sight dwindles, my gait slows as my experiences deepen. খাঁচার ভেতর চিন পাখি কেমনে আসে যায় খাঁচার ভেতর চিন পাখি কেমনে আসে যায় তারে ধরতে পারলে মন বেরি ধরতে পারলে মন বেরি দিতাম পাখির পা কেমনে আসে যায় খাঁচার ভেতর চিন পাখি কেমনে আসে যায় পাখি কেমনে আসে যায় No more can I match your zest while you wander. Let me unshackle, even as I want to be with you. I seek no more.